আমরা একটু দুঃখিত, আজকে আমাদের বৈঠক যেহেতু মাননীয় নাড্ডাজির ফ্লাইট একটু দেরিতে ল্যান্ড করেছে, সে কারণে একটু দেরিতে শুরু হয়েছে। প্রথম প্রেস কনফারেন্স যেটা মাননীয় মুকুলদার করার কথা ছিল সেটা আমরা এই কারণে করতে পারিনি, কারণ মুকুলদাও দেরিতে পৌঁছেছেন। রাস্তায় অত্যাধিক ভিড় ছিল, যত সংখ্যা আমরা ভেবেছিলাম র্যালিতে থাকবেন তার থেকে অনেক বেশি সংখ্যা ছিল, সেই কারণে সময়ের কিছু গ্যাপ তৈরি হয়েছে। তার জন্য প্রথম পর্যায়ের যে বৈঠক সেটা আমরা শেষ করেছি একটু দেরিতে। কার্যকর্তা বৈঠক ছিল, তার জন্য একেবারে ক্লোজ ডোর হয়েছে, আপনারা তার ফিডও পাননি, কোনো চ্যানেল কোনো এজেন্সি কাউকে প্রবেশের অধিকারও দেওয়া হয়নি। পরেরটা আমরা চেষ্টা করছি আপনাদের সামনে নিয়ে আসার। পরের যে সামাজিক কার্যকর্তাদের সঙ্গে আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতির বৈঠক আছে সেটা হয়তো আপনাদের কাছে আমরা ওপেন করে দেবো, বা অন্তত কিছুটা ওপেন যাতে করে দেওয়া যায় তার আলাপ আলোচনা চলছে। এখনই আপনাদের কাছে এ ব্যাপারে ইনফরমেশন এসে যাবে। পার্টির কার্যকর্তাদের বৈঠকে বিধানসভার যারা দায়িত্বে আছেন তারা ছিলেন, জেলার মাননীয় সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকরা ছিলেন, উত্তরবঙ্গ থেকে রাজ্যের যারা পদাধিকারী আছেন, সাংসদ আছেন, বিধায়ক আছেন তারা ছিলেন। বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, প্রত্যেক বিধানসভা ধরে ধরে আলোচনা হয়েছে। যেহেতু মাননীয় নাড্ডাজি উত্তরবঙ্গটাকে খুব ভালো করে চেনেন, আপনারা জানেন গত লোকসভা নির্বাচনের সময় উত্তরবঙ্গের পার্টির দায়িত্বে নাড্ডাজি ছিলেন। তার জন্য এখানে 8টি লোকসভা কেন্দ্র ব্যাপকভাবে ওনার প্রবাস আছে, সাংগঠনিক স্থিতি ওনার জানা আছে। তৃণমূল কংগ্রেসের গ্রাসরুট স্তরের অত্যাচার, দুর্নীতি, এগুলো নিয়েও উনি অবগত আছেন এই বিষয়েও, এবং আজকে এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে তৃণমূলের যে কাটমানি সংস্কৃতি, তৃণমূলের যে অত্যাচারের সংস্কৃতি, এইটা মানুষকে বারবার জানাতে বলেছেন। বুথ স্তরে পার্টির কর্মক্ষমতা এবং দক্ষতা আরও বাড়াতে বলেছেন। এবং সবথেকে বড় কথা, তিনি আজকে বাংলার কার্যকর্তাদের তারিফ করেছেন যে সারা দেশের মধ্যে কেরল ছাড়া একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র রাজ্য যেখানে একটা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বা লড়াই ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা লড়ছেন। উনি বলেছেন নিজের হাতে আমি 100 জনের তর্পণ করেছি সভাপতি হিসাবে। কাজে এক ভয়ঙ্কর লড়াই, যে লড়াই অন্য রাজ্যের মানুষ কল্পনা করতে পারবেন না, সেই লড়াই পশ্চিমবঙ্গের কার্যকর্তারা লড়ছেন। 6 মাস পরে আমাদের সরকার হবেই, তখন আমরা এর সাফল্য পাব, কিন্তু এই 6 মাস আমাদের এই লড়াইটা চালিয়ে যেতে হবে। তাই এটা মাননীয় সর্বভারতীয় সভাপতি পার্টির কার্যকর্তাদের সামনে রেখেছেন। কিছু প্রশ্নোত্তরও হয়েছে। কার্যকর্তারা তৃণমূলের ক্ষেত্রে যে ধরনের সমস্যা তৈরি করা হয়, বিশেষ করে পুলিশ অফিসারদের ক্ষেত্রে, এখানে স্টেট টেরর এজেন্সি, সর্বভারতীয় সভাপতি আমাদের রাজ্যের পুলিশকে বলেছেন, বিশেষ করে কার্যকর্তারা যখন পুলিশের অত্যাচারের বর্ণনা দিচ্ছিলেন তখন তার মুখ থেকে অভিব্যক্তি এসছে। পরিস্থিতি বা ওনার মুখের অভিব্যক্তি থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে পশ্চিমবঙ্গের অত্যাচার সম্পর্কে, পশ্চিমবঙ্গের স্টেট স্পন্সর্ড টেরোরিজম সম্পর্কে উনি অবহিত আছেন, এবং পশ্চিমবঙ্গের বাস্তবিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও উনি আমার আপনার মতোই ভালো করে জানেন। কিন্তু উষ্মা ছিল, বিরক্তি ছিল যে এই রাজ্য সরকারকে বারবার বলেও আগ্রহ করেও কিছু হচ্ছে না। কোভিড করোনার ক্ষেত্রে উনি রেখেছেন যে কোভিড করোনা আনরেকর্ডেড আছে পশ্চিমবঙ্গে, সবথেকে বেশি আছে, এবং বলেছেন আমি যখন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলাম তখন 6 মাস পর্যন্ত রাজ্য সরকার ডেঙ্গির রেকর্ড আমার কাছে পাঠাতো না। কেন্দ্র সরকারের কাছে রাজ্য সরকার 6 মাস ধরে কোনো রিপোর্ট পাঠাতো না, কোনো ডিটেলড রিপোর্ট আসতো না। এই বিষয়গুলো আজকে কার্যকর্তাদের সামনে তিনি রেখেছেন। আরও অনেকগুলো বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, সবগুলো তো আমরা প্রেসকে বলতে পারবো না। সবগুলো আলোচনার এখানে কী পর্যালোচনা হয়েছে বলা উচিতও নয়, কিন্তু একটা স্পেসিফিক বিষয় আপনাদের সামনে রাখলাম। মূলত নাড্ডাজি আজকে বৈঠক নিয়েছেন, আমি স্বাগত ভাষণ রেখেছিলাম, আর বাকি পুরো সময় বৈঠকটাই নাড্ডাজি রেখেছেন। এর পরের যে সামাজিক কার্যকর্তা বৈঠক আছে সেটাও মূলত নাড্ডাজি রাখবেন। No, at present there has not been any single discussion regarding any specific problem, but we have discussed all 54 assembly segments in North Bengal. No,
এখনো পর্যন্ত কোনো সিএ বা এনআরসি নিয়ে কোনো প্রশ্নোত্তর আসেনি, কিন্তু বিধানসভা কেন্দ্রিক আমি বারবার বলছি, যেখানে আমাদের এত হিন্দু অত্যাচারিত মানুষ আছেন উত্তরবঙ্গে, তাদের কথা এসছে, তাদের বিষয় এসছে, তাদেরকে আমরা নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। বাংলাতেও কিছুটা বলেছেন, বাংলা উনি যেহেতু জানেন তাই বাংলা কিছুটা বলেছেন, পুরোটা বলেননি। প্রশ্নোত্তর হয়েছে, অনেক বিষয় এসছে, আমি সব ডিসক্লোজ করছি না। সিএ এনআরসি আসেনি, কিন্তু পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু মানুষ, তাদের গণতান্ত্রিক এবং সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা করার জন্য বিজেপি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এটা সবাই জানি আমরা, তাই এ নিয়ে নতুন করে কোনো আলোচনা হয়নি। না, নাগরিকত্ব হবে তো, পার্লামেন্টে বিল পাস হয়ে গেছে, আর কি আছে, যখন সমস্যার সমাধান তো হয়েই গেছে এক প্রকার। যা কংগ্রেস সরকার এত বছর দিতে পারেনি, বিজেপি সরকারই দিচ্ছে প্রথমবার। কিভাবে দেবেন দেখবেন আপনারা, কিভাবে দেবেন। যে রোড ব্লক ছিল সেটা তো বেরিয়ে গেছে, এবার হবে এক এক করে। কোভিড করোনার কারণে হয়তো কিছু আটকে আছে, আজকে নাও কালকে নাও পরশু, বা পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিবর্তন হলেও হবে, সেগুলো নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। এনআরসি সিএ নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি, সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন কার্যকর্তারা। 356 নিয়ে কিছু বলেননি, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ স্টেট টেরর এজেন্সি আছে, এটা নাড্ডাজি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, সেটা প্রেসকে বলা যাবে না। ঠিক আছে, সেটা তো কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, আপনারা সবাই জানেন কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, সেটা নতুন করে আমরা এখানে আলোচনা করিনি। কিন্তু কি বলেছেন হাইকোর্ট, কি বলেছেন, যাবে না, 5 মিটার দূরত্ব বজায় রাখতে হবে, এমনকি সিএস ওয়েস্ট বেঙ্গল সিএস কোনো স্পেসিফিক প্ল্যানই করে। পশ্চিমবঙ্গে কোনো সরকারই চলছে না, চূড়ান্ত অরাজকতার চূড়ান্ত রূপ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। এখানে হাইকোর্ট রায় দিয়ে দেবেন, আমি বলছি, অন রেকর্ড ক্যামেরার সামনে বলছি, হাইকোর্টের বিচারপতিরা গিয়ে দেখবেন সেই রায়টা ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে কিনা। আপনারা 2 দিন কাগজে দেখাবেন, 3 দিন মিডিয়ায় দেখাবেন যে হচ্ছে না ইমপ্লিমেন্ট, কি হবে? আদালত রায় দিয়ে দেন, সরকারগুলো সেগুলো এক্সিকিউটই করে না, ইমপ্লিমেন্টই করে না। এখন পুজো মানে, তৃণমূলের পুজো মানে সেখানে ভক্তির কোনো ব্যাপার নেই, সেখানে বেহেল্লাপানা, উৎসবের নাম করে বেহেল্লাপানা হয়, সেটা বন্ধ করতে পারবে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার? করার ইচ্ছেই নেই, করবে কি করে? কারণ ওই পুজো থেকে তো তারা পয়সা তোলে, ওখানেও কাটমানি, ওখানেও রুজি রোজগার, ওখানেও তোলাবাজি। আমি আছি তো প্রেসিডেন্ট, আমি তো 2টো পুজোর প্রেসিডেন্ট আছি। আমার পুজোতে কখনো দেখবেন না ওরকম কাটমানি নিয়ে খুব সমস্যা করছে বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে ভিড় নিয়ে, কখনো হয় না। একটা ভক্তি ভরে পুজো হোক, এটা আমাদের বক্তব্য। উৎসব থাকতে পারে, কিন্তু বেহেল্লাপনা হওয়াটা ঠিক না। কোনটার 50,000 টাকার ক্লাব যে পেয়েছে, যে 20,000 টাকা করে বাস টাস সব স্যানিটাইজার করতে, আমি বললাম তো আদালত নির্দেশ দেবেন, কোনো অর্ডার ইমপ্লিমেন্ট হবে না। তৃণমূল নেতার বাড়িতে বসে ভাউচার বানানো হবে যে এত মাস্ক কিনেছি, এত স্যানিটাইজার কিনেছি। যদি বাস্তবিক অডিট হয়, রাজ্য সরকার সিএজিকে অডিট করতে দেয় না, সেন্ট্রাল যে আমাদের সিএজি আছে, ক্যাগ আছে, সেই ক্যাগ অডিট করতে পারেন না এখানে পর্যন্ত। সব মিলিয়েই এখানে ফলস ভাউচার তৈরি করা হয়। সরকার তো অভিযোগ করেছে, এই যে 100 দিনের কাজের এত বড় দুর্নীতি ধরা পড়ল, জেলাগুলোতে কেন্দ্রের টিম ঘুরে বেড়াতে চাইল, রাজ্য সরকার কোনো সহযোগিতাই করছে না, কিছুই দেয় না। যা টাকা পাঠানো হয়, 1000 কোটি টাকা আমফান, পুরোটা লুট করে নিয়েছে কেন্দ্র, যা রাজ্যে পাঠায় পুরো টাকাটা লুট হয়ে যায়, এটা সবাই জানে। তার জন্য হাইকোর্ট যতই জাজমেন্ট দিন, সেটা ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে কিনা, সেটাও যদি না ইমপ্লিমেন্ট হয়, যেমন মিডিয়ায় আসে, আমাদের খবরের কাগজে আসে, সোশ্যাল মিডিয়ায় আসে, আদালতের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়। কী নেবেন আমি জানি না। এটা দেখুন, আইনি সমাধান হতে পারে, আমরা রাজনৈতিক দল, আমরা মানুষের কাছে গিয়ে বলবো আমরা পরিবর্তন চাইবো, আমরা নতুন সরকার তৈরি করলে আদালতের রায়কে যাতে পালন করা হয় সে চেষ্টা করব। না দেখুন, প্রশ্ন হচ্ছে মানুষের পক্ষে যেটা মেনে নেওয়া সম্ভব, সেই রায় তো আদালত যদি দেয় অবশ্যই মানা উচিত। মানুষের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয় এমন রায় দিলেও তো মানা যাবে না। কিন্তু একথা তো অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে 50,000 টাকা ক্লাবকে দিয়েছে,
এটা দেওয়া হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট ব্যাংক বাড়ানোর জন্য, কোনো মানুষের উন্নতি করার জন্য হয়নি। এটা সবাই জানেন, এতে নতুনত্ব কিছু নেই। কিন্তু উনি বলেন পয়সা নেই, চালাতে পারছি না, কিন্তু খেলা মেলা উৎসব, ইমাম পুরোহিত এদের পয়সা দিতে তার কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা, কিষানের জন্য যে রাজনীতি করতেছে এটা আপনি কি বলেন, এটা মানে কি ভাবেন? করছে তো। আমি গত 4 দিন উত্তরবঙ্গের সব জেলায় গেছি, এই শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, আলিপুরদুয়ার, সব জেলাতেই দেখলাম আলু 5 টাকায় বিক্রি করেছেন কৃষক, আর শিলিগুড়ির বাজারে 45 টাকায় বিক্রি হয়েছে। মাঝে 40 টাকা কারা খেলো? মিডলম্যানরা খেলো, ফোরেরা খেলো, মধ্যস্বত্বভোগীরা খেলো। আর তার 50% অর্থাৎ 20 টাকা তৃণমূল পার্টির পার্টি ফান্ডে যাচ্ছে, তৃণমূলের নেতারা পাচ্ছে। যেমন চিটফান্ডের টাকা রোজগার হতো, যেমন কাটমানির টাকা রোজগার হয়, একইভাবে মিডলম্যানদের টাকা রোজগার হয়। সেটা যাতে বন্ধ না হয় তার জন্য আজকে এত লাফালাফি, এত কান্নাকাটি। জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকে যে দুজন মাইনর মেয়ে, বাচ্চা মেয়ে, একজন হচ্ছে মাইনরিটি আর পরের দুই বোন একবারই ট্রাইবাল, এরা দুজনেই গ্যাংরেপ হয় এবং দুজনের মধ্যে একজন সেপটিক ট্যাঙ্কে পাওয়া যায় আর একজন মারা যায়। এই ঘটনায় আপনারা আপনাদের বিজেপির পক্ষ থেকে ভারতী ঘোষ গেছিলেন, কিন্তু আলটিমেটলি এখনো কিন্তু গ্রেপ্তার হয়নি যাদের গ্রেপ্তার হওয়ার কথা। সে ব্যাপারে আপনারা কি আর কিছু করবেন ওটা নিয়ে? দেখুন, রাজ্যের পুলিশ যেটা আছে সে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশে চলে। যার গ্রেপ্তার হওয়ার কথা আমি যতদূর জানি সে তৃণমূলের নেতা। তৃণমূলের নেতাকে কি করে গ্রেপ্তার করবে? তার পরিবর্তে আমি যেখানে যাব 2টো করে মামলা দিয়ে দেবে আমার বিরুদ্ধে। তৃণমূলের নেতাকে, অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার মুরদ এই পুলিশ প্রশাসনের নেই। আমরা সিবিআই চাইছি, হয় সিবিআই আদালত দেবে, নয় সিবিআই রাজ্য সরকার করাবে। কেন্দ্র তো সরাসরি সিবিআই করাতে পারে না। আমরা ক্ষমতায় আসলে বা আমরা ক্ষমতায় যখন আসবো এগুলো আমরা সব দোষীরা এতে শাস্তি পায় তার ব্যবস্থা করব। যিনি হাতরাস নিয়ে লাফালাফি করছেন, একবার রাজগঞ্জে যেতে পারছেন না? আমাদের পার্টির নেত্রীরা গেলেন, ভারতীদি গেলেন, তা মুখ্যমন্ত্রীর যেতে কী অসুবিধা ছিল? এখানে তো উত্তরবঙ্গে এসেছিলেন, একবার রাজগঞ্জ থেকে ঘুরে আসতে পারতেন। পারলে উত্তরপ্রদেশ যেতে পারেন, কিন্তু শিলিগুড়িতে আসলে রাজগঞ্জ যেতে পারছেন না, এটা খুবই বেমানান। বললাম তো যে হাইকোর্ট তো ঘোষণা করে দিয়েছেন, ইমপ্লিমেন্ট তো রাজ্য সরকার করবে। রাজ্য সরকার যদি ইমপ্লিমেন্ট না করে তাহলে হাইকোর্ট কী ব্যবস্থা নেবেন সেটাও হাইকোর্টকেই দেখতে হবে। ক্লাবের বাইরে টানান, তাতে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু হাইকোর্ট অর্ডার করে দিলে সেটা তো মানতে হবে। হাইকোর্টের তো সে ক্ষমতা নেই সেটাকে মানানোর, সরকারকে করতে হবে। সরকার না করলে তার দায় কার? আমরা পুরোহিত এবং মুয়াজ্জেম ইমাম সবাইকে দেওয়ার বিরোধী। একটা সরকার পুরোহিত বা মুয়াজ্জেম এদের পয়সা দিতে পারে না, আমাদের সাম্প্রদায়িক বলেন, কিন্তু ইমামকেও দেবো না, পুরোহিতকেও দেবো না। এই নিয়ে আমাদের কোনো অ্যাম্বিগিউটি নেই। আমরা খুব ক্লিয়ার, আমাদের এতগুলো সরকার চলে, কিন্তু একটা চালান, আমরা তো 15খানা সরকার চালাই। কোনো সরকারে দেখেছেন পুরোহিতদের পয়সা দেওয়া হচ্ছে? জনগণের পয়সা ক্লাবকে দেওয়া, পুরোহিতকে দেওয়া, ইমামকে দেওয়া, মসজিদকে দেওয়া, এটা বেআইনি কাজ, এটা হতে পারে না। এই তো দেখুন, প্রথম কথা হচ্ছে যে মানুষকে এত নীচ ভাবা বোধহয় তৃণমূলের উচিত না, যে পয়সা দিয়ে ভোট কিনে নেব। 2-5 জন হতে পারেন, জেনারেল পাবলিক এখন এত নিচে যাননি। তৃণমূলের দয়ায় কল্যাণে 2-5 জন লোক এ কাণ্ডটা করতে পারে। তৃণমূল কংগ্রেসের বশংবদ কিছু মানুষ পয়সা করি নিয়ে লুটপাট করে ভোট করাতে পারে, কিন্তু সাধারণ মানুষ তারা কখনোই তৃণমূল থেকে সামান্য কটা টাকার জন্য নিজের বিবেক বিসর্জন দিয়ে দেবে, এটা যারা ভাবছেন তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। तृणमूल कांग्रेस सबसे बड़ा झूठा है। हाँ, किसने रोका? टीएमसी ने रोका है कोर्ट में जाकर। हमने तो टेकअप करने के लिए तैयार है, रोका तो टीएमसी ने कोर्ट में जाकर। आज चाय बागान में अपने कार्यकर्ता, अपने नेता, अपने सांसद, अपने सरकार
ये लोग लगकर ही चाय बागान में थोड़ा सा कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। 10 साल में उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। हमें तो केवल 1 साल सांसद का मौका मिला, सरकारी मौका नहीं मिला। प्रदेश में सरकार बनेगी तो चाय बागान का समस्या का समाधान दोनों सरकार मिलकर करेंगे। সামাজিক সংগঠনগুলিকে নিয়ে আলোচনা, প্রত্যেক বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন তাদের প্রত্যেকের দাবি মানা হলে তা থাকবে, এরকমটা বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন। আমি জানি না কে কি বলেছেন, কিন্তু উত্তরবঙ্গে অনেক সমস্যা আছে, বিভিন্ন সোশ্যাল অর্গানাইজেশন আছে, সমস্যাগুলো তারা তুলে ধরুন। কিভাবে উত্তরবঙ্গের, আমি উদাহরণ দিচ্ছি, উত্তরবঙ্গের ট্যুরিজম, পর্যটন, তার একটা বিশাল সম্ভাবনা আছে। এত সুন্দর পর্যটন ব্যবস্থা কেন হতে পারে ভারতবর্ষের কোনো রাজ্যে হওয়ার চান্স নেই, কিন্তু আমাদের কোনো পরিকল্পনা নেই। তো আজকে আমরা এই যে সামাজিক সংগঠন, এদের কাছেও জিজ্ঞাসা করব যে কীভাবে মানুষকে এই পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত করে কাজে লাগানো যায়। কোনো বেসিক ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে কিনা। চপমুড়ি শিল্পের বাইরেও শিল্প আছে, এটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেন না, এটাই দুর্ভাগ্যজনক। राज्यपाल जो बोल रहे हैं बंगाल में अभी जो राजनीतिक अवस्था में अशांति है, इसके लिए हम केंद्र से बात करेंगे, इसको हो सके तो राष्ट्रपति उनका अधिकार है। इट इज़ अप टू द गवर्नर टू डिसाइड। ही हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू रिकमेंड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इम्पोजिशन ऑफ 356। इट इज हिज राइट एंड हिज अथॉरिटी। पॉलिटिकल पार्टीज कैन ओनली क्लेम। আমরা দাবি করতে পারি, সিদ্ধান্ত রাজ্যপালের হাতে। चुनाव से पहले भाजपा के कुछ कार्यकर्ता नाराज हैं, पुराने विरोधी खेमे से कुछ लोग आए हैं, उनको पद दिया गया, उसको लेकर वो लोग। मेरे साथ किसी ने मिला नहीं, मैं नॉर्थ बंगाल का इंचार्ज हूँ। अगर कोई ऐसा है तो मेरे पास भेज दीजिए। আমি তো প্রথমেই বললাম, হাইকোর্ট যদি জাজমেন্ট দিয়ে দেন সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করবে সরকার। ইমপ্লিমেন্ট তো করে না সরকার, এক্সিকিউট তো সরকার করে না। হাইকোর্টকে ব্যবস্থা কি নেবেন সেটা ওনারাই ঠিক করবেন, মহামান্য বিচারপতিরাই স্থির করবেন। আমরা বলতে পারি না, এখন বলছো যে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের মণ্ডপে তো ভিড়ের লড়াই লাগান তারা নিজেদের মধ্যে, সেখানে কি তারা মানবেন? এটা তাদের সিদ্ধান্ত। ঠিক। সমাজের মধ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসছে, এই যে কনফিডেন্সের জায়গাটা, নাড্ডাজি যারা কার্যকর্তা তাদেরকে এমন একটা কিছু বলা যাবে, কি মূল মন্ত্র দিয়ে গেলেন? না দেখুন, 6 মাস আমাদের হাতে সরকার নেই, পুলিশ নেই, প্রশাসন নেই। এই সময় ভারতবর্ষের সবথেকে, পৃথিবীর সবথেকে কঠিনতম যুদ্ধ কার্যকর্তারা যেন সমস্ত কিছু ছেড়ে করে, এটাই মন্ত্র তিনি দিয়ে গেছেন। কেরল এবং বাংলার কার্যকর্তাদের পৃথিবীর সবথেকে কঠিনতম যুদ্ধ করতে হয়, সেই যুদ্ধ থেকে তারা যেন সরে না যায়। হ্যাঁ, সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা আসবে, ওখানে আপনারা ফিড পাবেন, যা কথাবার্তা হবে আমরা ফিড দিয়ে দেবো, আর আমাদের মিডিয়া সেল ফটো তুলে গ্রুপে ছেড়ে দেবে। না, আর কারোর দরকার নেই, আমরা করে দেবো। ওরা করে দেবে, ওগুলো করবে, সবই করবে। ওগুলো সোশ্যাল মাধ্যম যেটা আছে, আমরা তো ফিড দিয়ে দেবো, আপনি তো সবই পেয়ে যাবেন তখন। না ফিড কি, আমাদের আউটপুট ডেস্ক আছে, পার্কিং এ, ওখান থেকে ফিড নিতে পারেন, বা আমাদের পেজ থেকে লাইভ স্ট্রিম করা যাবে। তো গ্রুপে আছি, তো গ্রুপে আমাদের ভিডিও লাগবে, আমাদের কিছু কাজ আছে। না আপনারা ফিড রেকর্ড পাবেন না, কি করে হবে সেটা? লাইভ লিংক দিয়ে দেবো ফেসবুকে লাইভ লিঙ্ক দিয়ে দেবে, তাহলে ওখানে পেয়ে কথা বলে নেবেন, কি চাইছে কথা বলে নেবেন। রেকর্ডেড ভিডিও লাগবে, পরে ভিডিও চাইছে তো আপনার, পরে হ্যাঁ পরে ভিডিও দিয়ে দেবেন, পরে আমি আপলোড করে দেবো, পার্টির অফিসিয়াল সাইটেই আপলোড করে। রিয়েল টাইম লিংক দিয়ে দেবো, পরে ভিডিও দিয়ে দেবো। আমি বলছি তো, তারা সুপ্রিম কোর্টে যান, কি জাজমেন্ট আসবে আমি জানি না। আমি চাই দুর্গাপুজো হোক, ভক্তি বড়ে হোক, তার জন্য কোভিড করোনা যেন মহামারীর মতো বাংলায় না হয়। পশ্চিমবঙ্গে সবথেকে বেশি কোভিড আনরেকর্ডেড, আজকে প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী নাড্ডাজি বললেন, এখানে সবথেকে বেশি কোভিড আছে। কিন্তু এখানে তো কিছু ওই অডিট কমিটি হয়েছিল, এখন কোথায় গেল সে অডিট কমিটি ভগবান জানে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে খাদের কিনারায় মুখ্যমন্ত্রী দাঁড় করিয়েছেন, শুধু ডাক্তারদের ভয় দেখিয়ে। এটা দুর্ভাগ্যজনক। সর্বভারতীয় সভাপতি আছেন, আমাদের লোকসভা ভোটের আগে তিনি উত্তরবঙ্গের 8টা লোকসভার দায়িত্বে ছিলেন, 7টা জিতেছি আমরা, সেই হিসেবেও তো এসছেন, আলাদা করে কোনো অবজেক্টিভ নেই। দক্ষিণবঙ্গেও যাবেন। শুনুন, আউট অফ 54 উই হ্যাভ টু উইন অ্যাটলিস্ট 56।
50-এর বেশি আসন আমরা জিতবো, এটা আমি কনফিডেন্টলি আজকে আপনাদের সামনে অন ক্যামেরা বলে গেলাম। আমি উত্তরবঙ্গের দায়িত্বে আছি, সেই হিসাবে বলে গেলাম। না, সেটা তো আপনি দেখতে পাবেন, 4টে হারবো বলিনি, 50টা অন্তত জিতবো। আমরা 23+ বলেছিলাম লোকসভা ভোটে, 22+ বলেছিলাম, আরও তো 20টা বলিনি জিতবো, কোন 20টা হারবো বলিনি তখন। এখানেও বলছি কোন 4টে হারার সম্ভাবনা আছে সেটা বলছি না। 200+, আউট অফ 294, 200-র বেশি সিট বিজেপি পাবে, নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা পাবো 200-র বেশি। টার্গেট তো 294-এ 294ই ভাবতে পারেন, পাবো 200-র বেশি। রাজনৈতিক দলের কাছে এমন থাকে না যে 294-এর মধ্যে 2টো ছেড়ে 292টা ধরবো। 294টাই আমরা জিততে চাই, 200-র বেশি আমরা জিতবো, এই কনফিডেন্ট আছে। দাদা পুজো মণ্ডপ কন্টেনমেন্ট জোন এটা বলেছে, এবং দ্বিতীয়ত যেটা হচ্ছে ভার্চুয়ালি পূজা দেখতে হবে। আমি পরিষ্কার ভাষায় বলছি, আদালত যে রায় দিয়েছেন সেই রায় তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন কিনা আমার সন্দেহ আছে। ইমপ্লিমেন্ট না করলে কি হবে তার দায়িত্ব আদালতের, মহামহিম আদালতের। সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা, সেটা হচ্ছে পুজোগুলোতে ভক্তি কমে গেছে, ভক্তি নেই, এখন বেহল্লাপনা হয়েছে, তৃণমূলের নেতাদের নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জায়গা হচ্ছে। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है राजू बिस्ता करेंगे। सभी मीडिया के साथियों को नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज सवेरे से शाम तक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कार्यक्रम था उसको लेकर के मैं प्रेस ब्रीफिंग के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी अध्यक्ष बनने के बाद नॉर्थ बंगाल का ये उनका पहला दौरा था और नॉर्थ बंगाल से वो भली भांति अच्छे से इशूज से और यहाँ के मुद्दों से लेकर के बहुत भली भांति वो परिचित हैं, क्योंकि 2019 के चुनाव में करीब 6 अलग अलग लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी उनके पास थी। और ये एक छोटा दौरा लेकिन बहुत ही कार्यकर्ता को प्रेरणा देने वाला और नॉर्थ बंगाल की जनता का उत्साहवर्धन करने वाला था। और कार्यक्रम की शुरुआत सवेरे करीब 11:15 साढ़े 11 बजे वो जब एयरपोर्ट पहुँचे, उनका बहुत भव्य तरीके से यहाँ के नॉर्थ बंगाल के ट्रेडिशनल चीज़ों के द्वारा उनका भव्य स्वागत एयरपोर्ट में हुआ। अलग अलग समाज के लोग, माताएं, बहनें और बच्चे वहाँ पे उपस्थित थे। और उसके बाद जो है एयरपोर्ट के बाद वो ठाकुर पंचानन वर्मा जी जो एक राजवंशी के बड़े नेता और एक समाज सुधारक हैं, उनका मालार्पण हुआ। और उसके बाद जो है कालीबाली मंदिर में एक पूजा का कार्यक्रम भी था। और उसके बाद आकर के इसी होटल के अंदर में जहां हम सब लोग मौजूद हैं, संगठन के 2 कार्यक्रम थे जिसके अंदर में भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े हुए सभी नॉर्थ बंगाल के ज़िले के सब कार्यकर्ता, उनके सांसद, जो भी हमारे विधायक हैं, वो सब यहाँ उस दौरान वहाँ पे उपस्थित थे। बहुत डिटेल में माइन्यूटली जो है एक एक ज़िले और एक एक विधानसभा और संसदीय सीट को लेकर के चर्चा हुई और सब कार्यकर्ताओं ने अपना विषय रखा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी सबको संबोधन किया कि एक अच्छे कार्यकर्ता के गुण क्या होते हैं और हमारी जिम्मेदारी और हमारे जो पार्टी हमसे जो अपेक्षा करते हैं वो सब क्या चीज़ है, उन्होंने बहुत माइन्यूटली इस चीज़ को बताया। फिर उसके बाद जो है एक दूसरा जो कार्यक्रम हुआ, नॉर्थ बंगाल के सभी समाज के सभी कम्युनिटी के लोग आज उपस्थित थे और उन सब के जो भी मांगे थे या जो उनके सुझाव थे या जो कुछ भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखना था या दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष जब आपके क्षेत्र में आए तो उनसे जो अपेक्षाएं थी वो सब समाज के लोगों ने उनके सामने बहुत खुल करके रखी। और ये एक बहुत ही अद्भुत किस्म का और बहुत ही अच्छा और बहुत सारे समाज को जो है प्रेरणा देने वाला कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम भी बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक हुआ। अब जब अंत में फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है सबके सामने उद्बोधन रखा, उसके कुछ बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक अध्यक्ष जी ने शुरुआत अपने भाषण की कुछ इस प्रकार से की कि हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी और हम सब लोग
यही चाहते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी मंत्र को लेकर के हम आज तक आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी इसी मंत्र को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस धरती पे हम सब लोग अभी उपस्थित हैं, जहां पे टीएमसी का शासन है, उसका सीधा स्पष्ट फंडा है फूट डालो और राज करो। इसके उदाहरण देकर के भी मैं आपको समझा सकता हूं। मैं खुद दार्जिलिंग का सांसद हूं। दार्जिलिंग पहाड़ के अंदर में गोरखा के अलग अलग समाज कम्युनिटी के लोग रहते हैं। उनके 16 अलग अलग डिफरेंट डेवलपमेंट बोर्ड बना करके उनको बांटने की साजिश हुई। इस तरह के काम जो है पश्चिम बंगाल में लगातार हो रहे हैं। और दूसरा, जब वो अपना वक्तव्य रख रहे थे, जितने भी समाज के लोग जिन्होंने सुझाव दिए थे या जो बात अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहना चाह रहे थे, उसमें दो बातें बहुत कॉमन सी थी। एक ये था एम्प्लॉयमेंट को लेकर के और दूसरा था एम्पावरमेंट को लेकर के। उन्होंने समाज के सभी आए हुए वर्ग के सामने ये विषय रखा कि मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री बने, डे वन से एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने काम किया है। चाहे वो जनधन अकाउंट के माध्यम से 40 करोड़ से ज़्यादा खाते खुलने का कार्यक्रम हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो जो हमारी गरीब माताओं को शक्ति प्रदान करता है, या पीएम आवास योजना हो, ये गरीब कल्याण योजना गरीबों के गांव और देहात में रहने वाले समाजों के लोगों के काम आता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, किसान सम्मान निधि, दुख की बात है 76 लाख से ज़्यादा किसान इस योजना से पश्चिम बंगाल में वंचित है। इसकी भी उन्होंने अपने संबोधन में इसका भी जिक्र किया। इसी के साथ आयुष्मान भारत योजना, जो कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है गांव देहात में तो उसको 5 लाख रुपए तक की बीमा मिलती है। लेकिन राज्य सरकार के जो रवैया है उसको देखते हुए ये योजना भी पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है। इसकी भी उन्होंने अपने भाषण में, अपने संबोधन में जिक्र किया। और इसके अलावा और भी बहुत सारे विषय जो उनके सामने आए थे। एक तो चाय बागान और मिनिमम वेज को लेकर के कॉमन सी फीलिंग सबके मन में थी, क्योंकि नॉर्थ बंगाल हम सब जानते हैं, चाय बागान, सिंखोना बागान में काम करने वाले बहुत सारे लोग जो है पार्टिकुलरली इस क्षेत्र में रहते हैं। तो उन्होंने संबोधन में ये भी कहा कि अभी पिछले दिनों, कुछ दिन पहले ही जो पार्लियामेंट सेशन चला, उसमें जो कोड ऑन वेजेस जो बिल पास हुआ, उसके बाद अब पीएलए एक्ट 1951 ये अस्तित्व में नहीं रहेगा। उसके बाद अब इसके रूल्स बनने लग रहे हैं। 2-3 महीने रूल्स बनने में शायद समय लगेंगे। फिर उसके बाद सब चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों को मिनिमम वेज की गारंटी मिलेगी। जिस तरह से बाकी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का जो स्किल लेबर है पश्चिम बंगाल में 350 रुपया उनको आज मिनिमम वेज मिलता है, उसी तरह से चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों को भी 350 रुपया मिनिमम वेज मिलेगा। उस कानून में ये भी प्रावधान है, अगर कोई मालिक या जो एम्प्लॉयर है कुछ काइंड में कुछ फैसिलिटी अगर वर्कर को या श्रमिक को देता है, उसके नाम से वो सिर्फ 15% पैसा ही काट सकता है। अगर उदाहरण के तौर पे 350 में अगर कोई 15% काट ले तो भी 290 से लेकर के 300 रुपया उसको देना पड़ेगा। इस बात की भी उन्होंने जिक्र की। एक राजवंशी समाज के लोग थे, उनकी तरफ से नारायणी सेना की बात हुई। अध्यक्ष जी ने कहा कि आप सब लोग काफ़ी समय से इसकी मांग करते रहे हैं और आपकी बात को प्रमुखता से मैं दिल्ली में भी रखूंगा, मैं भी आपके साथ हूं, ऐसी बात उन्होंने अपने उद्बोधन में किया। गोरखा समाज के लोग भी आए थे और उनकी भी 2-3 मांग थी। गोरखा समाज के लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 2009 से वो लोग सहयोग करते रहे हैं, उनको जिताते रहे हैं और वो खुश हैं इस बात को लेकर कि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गोरखा समाज को लेकर के 2 मांगे रखी थी, 2 विषय रखे थे। एक तो जो हमारे गोरखा भाई बहन हैं उनका 11 जाति का एक विषय है, क्योंकि गोरखा कम्युनिटी में 11 कम्युनिटी के लोग अभी भी एसटी बनने से वंचित हैं, जबकि 1941 तक वो हिल्स ट्राइब के नाते जाने जाते थे पूरे देश भर में, लेकिन उनका अधिकार वो छीन लिया गया, उसकी किसी को जानकारी में भी नहीं थी।
इस बात को ध्यान में रखते हुए 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में इस बात का जिक्र किया था कि जो गोरखाओं में 11 छूटी हुई जातियां हैं वह हम उनको एसटी स्टेटस देने का काम करेंगे। इसी तरह दार्जिलिंग हिल्स तराई डूवर्स को लेकर के स्थायी राजनीतिक समाधान की बात थी, उन्होंने ये बात रखी। अध्यक्ष जी ने कहा कि ये हमारा कमिटमेंट है और हम इसको करेंगे। इसके अलावा सिंखुना प्लांट की भी बात हुई। किसी एक साथी ने इस बात का जिक्र किया तो अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा कि हिमाचल प्रदेश से मैं आता हूं और हिमाचल प्रदेश में हमने एक प्लांटेशन मेडिसिन प्लांटेशन हब बनाया। उसी के तर्ज पे जो है जो हमारे पास सिंखुना बगान की इतनी 20,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है उसके अंदर में सिंखुना प्लांट का हम काम करेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। रेलवे से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे आ रहे थे, चाहे वो स्टॉपेज को लेकर के हो या कुछ ट्रेन नए बनाने की बात हो या कुछ ट्रेन जो चेंज हो रही है। मेरे ख्याल से इसके अंदर में पिछले दिनों में कई जगह ऐसा विषय आया है। तो उन्होंने बताया कि रेलवे मंत्री से स्वयं उनकी सवेरे आने से पहले बात हुई है। पूरे नॉर्थ बंगाल के सारे सांसद जो है पूजा के बाद रेलवे मंत्री जी से मिलेंगे और रेलवे से जुड़े हुए जितने विषय उनके सामने रखेंगे। इवन ये जो दार्जिलिंग का सेबोक रंगपुर सिक्किम का जो रेलवे लाइन है, आज FRA 1 2006 पूरे देश भर में लागू है। पश्चिम बंगाल में भी दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिला छोड़कर के सब जगह लागू है, लेकिन आज ये FRA 1 2006 कालिम्पोंग दार्जिलिंग में लागू नहीं होने के कारण वहाँ के लोग जो इस रेल परियोजना में आते हैं वो अपने अधिकारों से वंचित है। तो ये सब विषय हम उनके सामने रखेंगे। फिर अंत में भी उन्होंने यही बात कही, TMC जो है समाज को तोड़ने का काम करती है, भारतीय जनता पार्टी समाज को जोड़ने का काम करती है। TMC सिर्फ और सिर्फ जो है राजनीति, वोट बैंक के लिए राजनीति करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को ताकतवर बनाने के लिए और देश की जनता की सेवा करने के लिए काम करते हैं। ये सारा विषय जिस तरह से हुआ और अभी उनकी फ्लाइट थी वो होटल परिसर से निकल भी चुके हैं और आप सब प्रेस के साथ ही सवेरे से इस बात को लेकर के वेट कर रहे थे। आप भी इतने देर तक रहे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ आपके सवाल होंगे तो 2-4 सवाल मैं अवश्य लूँगा। सर, वो जो TMC तोड़ता है, बीजेपी जोड़ता है, तो पहाड़ का जो एक बोर्ड बना के जो डिवीजन बना है उसी के मुताबिक ऐसे पता है? देखिए, उन्होंने कोई स्पेसिफिक उदाहरण नहीं दिया, मैं उदाहरण दे करके आपको समझा रहा था। देखिए, ये 4.5 साल तक TMC सिर्फ लूटने का काम करती है। जब चुनाव पास आता है 6 महीने तक फिर पैसा दे करके, लालच दे करके, अलग अलग तरह के प्रोपोगंडा करके उस समाज के साथ निकटता दिखाने की काम करती है। मैं कहना तो नहीं चाह रहा था, आपने प्रश्न पूछा है। आज TMC पश्चिम बंगाल में एक धर्म विशेष को लेकर के काम करती है और जब चुनाव सामने आता है, चुनाव निकट आता है, तो बाकी धर्मों के लोगों को भी जो है अलग अलग तरह के चॉकलेट्स देने की कोशिश होती है। सो ये बात स्पष्ट दर्शाती है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है पश्चिम बंगाल में जो ये TMC की सरकार करती रहती है। और कोई सवाल? एक्चुअली कुछ दिन पहले अमित शाह ने बताया कि बिहार तेजी से बढ़ रहा है फॉर डेवलपमेंट बिकॉज देयर इज अ गुड रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। एवरीबडी नोज देयर इज नो गुड रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर इन द क्वेश्चन ऑफ बंगाल एंड सेंटर, Mamata Banerjee and Modi. So my question is, how many development projects have been stalled in Bengal as well as in North Bengal proposed by you and others member of parliament? Actually, can you have any detailed list of it and just actually is it discussed here? देखिए, इसकी चर्चा इस पूरे बैठक के अंदर में नहीं हुई, लेकिन आपने प्रश्न पूछा है और काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा है और मेरा ये अधिकार बनता है कि इसका जवाब मैं आपको दूं। एक तो मैं आपको ये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में जो TMC की सरकार है ये जन विरोधी है, ये एंटी पीपल्स पॉलिटिकल पार्टी है। क्योंकि अगर आप जनता के साथ होते
तो आयुष्मान भारत को आप नहीं रोकते। अगर आप किसानों के साथ होते तो आप जो है किसान सम्मान निधि योजना को नहीं रोकते। ऐसी जितने भी योजनाएं जहां केंद्र सरकार डायरेक्ट डीएफटी के थ्रू उस उपभोक्ता तक सीधा पैसा पहुंचाने का काम करता है, उस योजना को टीएमसी सरकार विरोध करती है। तो इससे ये बात स्पष्ट है, ये प्रमाणिक है कि आज टीएमसी पार्टी केंद्र सरकार के जो अलग अलग योजनाओं से जो पैसे आते हैं, उस पैसे से टीएमसी पार्टी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करती है। आपको मैं एक उदाहरण देके बताना चाहूंगा। ये मनरेगा और पीएमजीएसवाई, ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके अंदर में इतनी बड़ी धांधली होती है पश्चिम बंगाल के अंदर में। जेसीबी ला करके रोड की, पहाड़ की खुदाई होती है और लोगों के नाम दिखा करके जो है बहुत सारा पैसा उसके माध्यम से लूटा जाता है, और वो सारा पैसा जो है पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के जेब में जाता है, उनके कॉन्ट्रैक्टर के जेब में जाता है। सो मैं सीधा स्पष्ट ये कहना चाहूंगा कि ये जन विरोधी पार्टी है, ये लोग विरोधी पार्टी है, किसान विरोधी पार्टी है। ये जो हमारे पश्चिम बंगाल की गरीब जनता है उसके विरोध करने वाली ये पार्टी है। लेकिन आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जब से वो प्रधानमंत्री बने, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, श्रमिक के लिए दिन और रात मिलाकर के 18 से 19 घंटे तक रोज काम करते हैं। किसी तरह हम जो है गरीब को आगे बढ़ा सके, किसी तरह हम किसान को आगे बढ़ा सकते। ये स्पष्ट दिखता है, उनकी योजनाओं में दिखता है, उनके भाषणों में दिखता है। और मुझे लगता नहीं कि उनकी बात को कोई गलत प्रूफ करे ऐसा कोई व्यक्ति भी हमारे सामने होगा, क्योंकि वो अंदर से बोलते हैं, दिल से बोलते हैं। जिस तरह से वो काम करते हैं उस तरह से अपनी बात को वो रखते भी हैं जनता के सामने। और पूरा हिंदुस्तान, आज तो पूरा बंगाल भी जो है बीजेपी मय हो चुका है, पूरा हिंदुस्तान मोदी जी पे ट्रस्ट करता है। और टीएमसी दूसरी तरफ जनता को सिर्फ लूटने का काम करती है। देखिए 34-35 साल तक सीपीएम ने राज किया और जो है पश्चिम बंगाल की स्थिति काफ़ी खराब हुई, लेकिन पिछले 10 साल में बहुत तेजी से जो है पश्चिम बंगाल को खराब करने का काम जो है टीएमसी की सरकार ने किया। और यहाँ का प्रशासन, यहाँ का पुलिस आज वो टीएमसी का कैडर बन के काम करता है। वो एक ऐसा लगता है पुलिस ना होकर के एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता और कार्यकर्ता है। और सबसे ज़्यादा टेररिस्ट फैलाने का काम, सबसे ज़्यादा टेरर फैलाने का काम पश्चिम बंगाल की पुलिस और यहाँ की प्रशासन करती है। कुछ और ऐड कर मुझे बोलना है तो आप बोलिएगा। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड का बारे में बहुत सारी चर्चा चल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड आता है तो दूसरा जगह डाइवर्ट करके दूसरा प्रोजेक्ट में काम करते हैं, उसको अपना नाम हो। तो एक्चुअली एनी प्लान टू लॉन्च अ स्टार अगेंस्ट द तृणमूल कांग्रेस बिफोर असेंबली इलेक्शन जस्ट 6 मंथ्स? देखिए दादा, मैं आपको ये कहूँगा कि आज जो 2021 की चुनाव की स्ट्रेटेजी आपके सामने आज तो मैं शेयर नहीं करूंगा, चुनाव में बहुत टाइम है और अभी इस तरह के लेकर के बहुत बैठकें भी हुई नहीं। जैसे समय आएगा मैं बताऊंगा। लेकिन आपने एक बात अपने प्रश्न में पूछा था, मैं कुछ ढूंढ रहा था कि आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया। देखिए, मैं हमेशा बता रहा हूं कि पिछले 1.5 साल से मैं सांसद हूं। लेबर बिल पास करने में मैं खुद लेबर कमेटी का मेंबर था, 1.5 साल तक मैं लगा रहा। कोरोना संकट के समय में हर हफ्ते मीटिंग होती थी, फिर भी मैं उसको अटेंड करता था। मिनिमम वेज की मैंने बात की, ईएसआई अस्पताल की सुविधा इसमें मिलेगी। ये पूरा हिमालय का क्षेत्र, ये पहले जो भारत सरकार ने जो हिमालय कंसोर्टियम बनाया था उसका हिस्सा नहीं था पश्चिम बंगाल। अब जो है नीति आयोग ने इसको भी इंक्लूड किया है। और दार्जिलिंग के अंदर में, कालिम्पोंग के अंदर में, पूरे पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा रोड्स और हाईवे के काम जो है हमारे क्षेत्र में हो रहे हैं। कालिम्पोंग जाने के लिए 2 अल्टरनेटिव हाईवे बन रहे हैं, दार्जिलिंग जाने के लिए एक अल्टरनेटिव हाईवे बन रहा है, कोरोनेशन ब्रिज का अप्रूवल मिल चुका है। और भी जो है सिलीगुड़ी के अंदर में जो ट्रैफिक को डीकंजेशन करने के लिए जो योजना है उसके ऊपर में काम चल रहा है। करसंग के अंदर में रेल म्यूजियम बन रहा है। ऑल इंडिया रेडियो करसंग को डिजिटलाइज कर रहे हैं। नेशनल हाईवे 10 हम सब जानते हैं, हर बार बारिश के बाद जो है वहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, उसको ऑल वेदर रोड जो है भारत सरकार बना रही है। पीएमजीएसवाई में बहुत सारे रोड अप्रूव हुए हैं। एमपी लेट फंड में 2.5 करोड़ रुपए आया था अकाउंट में, वो सारा वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है। लेकिन
फिर भी मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद भी आज तक डीएम ने पैसा रिलीज नहीं किया। क्यों नहीं किया ये वही जानते हैं। मैं चाहूँगा आप जब भी डीएम से मिले ये प्रश्न जरूर करें। पीएम रिलीफ फंड के माध्यम से करीब 90 से 100 लोगों का जो है इलाज करने में अभी तक सहायता मिली है। और विष्णु चटर्जी जी हम सब जानते हैं, नॉर्थ बंगाल में कोविड के एक वॉरियर थे जिनकी मतलब डेथ हो गई थी। लोगों की सेवा करते 50 लाख रुपए भारत सरकार की तरफ से उनको मिला। और कोरोना के समय में पीपी किट हो, मास्क हो या और भी जो भी वेलफेयर के काम हो सकते हैं, ये सब काम देने का जो है काम किया है। और बस यही है कि आज के इस दौरे से जो है कार्यकर्ता और आम जनता तक दिल को छूने में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है सफल हुए हैं। और पिछले 9 साढ़े 9 साल से एक घटिया किस्म की सरकार जो है पश्चिम बंगाल में चल रही है, न जिसका कोई सिर है, न पैर है, न कोई विज़न है और न ही कोई सोच है। और इस तरह की सरकार के कारण पश्चिम बंगाल का बहुत नुकसान हुआ है। देखिए आज पश्चिम बंगाल में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मतलब आज देखिए गुजरात के अंदर में मतलब एक रेगिस्तान था, दूसरी तरफ पाकिस्तान था, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी तेज़ी से जो है गुजरात ने विकास किया है। पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट बना है। हमारे पास कोस्ट लाइन है, हमारे पास सबसे ज़्यादा बारिश होती है, हमारे पास सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार पाने वाले लोग हैं पश्चिम बंगाल के अंदर में। और हमारे पास क्योंकि बारिश सबसे अधिक होती है तो हमारे पास खेती के भी, एग्रीकल्चर के भी सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे होने के चांसेस है। हमारे पास पहाड़ है, हमारे पास टूरिज़्म, कुच बिहार, डुवर्स, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, ये सब क्षेत्र है। हम हेल्थ टूरिज़्म को बढ़ा सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, रूरल टूरिज़्म को हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन इतना अपार संभावना होते हुए भी हम उसको इनकेश करने में नाकाम रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में पिछले 45 साल में जो भी सरकार रही, इसने सिर्फ पश्चिम बंगाल को लूटने का काम, पश्चिम बंगाल की जनता को लूटने का काम किया है। एक समय अंग्रेज हिंदुस्तान को लूटते रहते थे और आज 45 साल से पश्चिम बंगाल में टीएमसी और सीपीएम की सरकार ने हमारी जनता को लूटने का काम किया है। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आप भी पहाड़ से हैं और जैसे आपने मेंशन किया कि बहुत सालों से पहाड़ी लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है और मोदी जी ने भी भाषण में पहले ही स्टेट कर दिया था कि गोरखालैंड को वो सपोर्ट करेंगे। तो क्या जनता, पहाड़ का जनता का सवाल हमेशा से यही रहा है कि गोरखालैंड कब मिलेगा? तो आपको क्या कहना है कि गोरखालैंड मिलेगा भी या नहीं? देखिए मैं स्वयं भी गोरखा हूँ और आपकी भावनाओं को कदर करता हूँ। और गोरखाओं से लेकर के जो भी मुद्दे थे, हमने शायद बीजेपी को तीसरी बार जो है मदद की है। मुझे नहीं लगता इतने सारे विषय कभी पार्लियामेंट तक पहुँचे थे या गूंजे थे। और लगातार जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, क्योंकि आज भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री जी, उन्होंने हमेशा कहा है कि गोरखाओं के साथ जो है बीजेपी एक चट्टान की तरह खड़ी है। और मैं आपको एक बात और भी बताऊं, देखिए हम सब गोरखा राष्ट्रभक्त, देशभक्त होते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रभक्तों की पार्टी है और हमारा एक नेचुरल अलायंस भी है। लेकिन मैं उनकी पीड़ा भी समझता हूं क्योंकि इतने साल, 11 साल बीत गए हैं, लेकिन फिर भी उनके जो मांगे थे उनका कोई समाधान नहीं हुआ। और मुझे लगता है इस बार जब दूसरी बार सरकार बनी, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि पिछले 7-8 महीने में कोरोना के कारण ऐसे कोई भी फैसले, कोई भी काम नहीं हुआ है। उससे पहले बहुत तेज़ी से, चाहे वो 370 जम्मू कश्मीर का विषय था, बोरोलेन का इशू था, ब्रू रेंग से रिलेटेड इशू था, सीएबी का कानून था या ट्रिपल तलाक का विषय था, लेबर रिफॉर्म से लेकर के जो विषय थे, ये सब विषय को करने में जो है भारतीय जनता पार्टी सक्षम रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि हम दार्जिलिंग, तराई और डुवर्स के लेकर के स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम कमिटेड हैं। आप निश्चिंत रहिए, ये काम जरूर होगा, अवश्य होगा। हाल ही में देखा गया भारतीय जनता पार्टी काफी सक्रिय हो गया पश्चिम बंगाल में, तो क्या समझा जाए कि ये जो आज मीटिंग हुई है और कुछ दिन पहले कलकत्ता में भी देखा गया था, तो क्या ये 2021 की तैयारियां शुरू हो गई है? देखिए समझना वो आपका काम है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं,
2019 से ये माहौल बन गया था। जिस तरह से जन विरोधी सरकार पश्चिम बंगाल में चलती रही, तभी जनता ने मन बना लिया था और आज 2021 में यह तय है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 200 से ज्यादा सीट मिलेंगे और ममता दीदी का जाना तय है। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा, मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर।